آج سے 31 سال پہلے پاکستانی فوج نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو تاریخ کے اندھیروں میں دفن ہو چکا ہے اور آج اسے کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ اس واقعے میں شامل تھے وہ آج تک اسے نہیں بھول سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستانی فوجیوں نے اپنے خون سے صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک نئی تاریخ رقم کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکی فوجیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان کی مدد لینا پڑی تھی۔ امریکہ نے اس واقعے پر مشہور زمانہ فلم بلیک ہاک ڈاؤن بھی بنائی تھی، لیکن اس فلم میں پاک فوج کو وہ کریڈٹ نہیں دیا گیا جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس واقعے کی حقیقت بتائیں گے جس میں سپر پاور امریکہ کو پاکستانی فوجیوں کا محتاج بننا پڑا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے آپریشن کی ہے جسے امریکی فوج کی تاریخ کی بڑی ناکامیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں سینکڑوں صومالی شہریوں کی ہلاکت کے ساتھ ساتھ 18 امریکی فوجیوں کی ہلاکت ہوئی، جن میں سے کئی کی لاشوں کو موغادیشو کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اس سے پہلے لبنان میں 1983 میں امریکن میرینز کے ٹھکانے پر خودکش حملے میں 241 امریکی فوجی ڈھیر ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک ہی دن میں امریکی فوج کو اتنا بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس آپریشن کی ناکامی پر امریکی پبلک میں وہ شور مچا کہ امریکہ کو صومالیہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد آج تک وہ دوبارہ صومالیہ کی زمین پر اپنے اڈے نہیں بنا سکا۔ اس کہانی کی شروعات 1993 میں ہوئی تھی۔ اس وقت صومالیہ میں بڑے باغی وارڈ لارڈ جنرل فرح عدیدی کا توتی بول رہا تھا۔ اس کے پاس باغی جنگجوؤں کی ایک بہت بڑی فوج تھی جو دارالحکومت موغادیشو میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، لیکن وہ دارالحکومت پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ صومالیہ میں اقوام متحدہ نے بڑی تعداد میں اپنے امن فوج تعینات کر رکھی تھی۔ اس میں پاکستانی اور امریکی فوج بھی شامل تھی۔ پاکستانی فوج صومالیہ کے عوام کی مدد کر رہے تھے کیونکہ صومالیہ میں قحط پڑا ہوا تھا، عام لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ پاکستانی فوج ان لوگوں میں کھانا تقسیم کرتے تھے اور پاکستانی فوجی ڈاکٹرز ان کے بیمار لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ لیکن جنرل فرح عدید کو پاکستانی اور UN فورسز کا اپنے ملک میں رہنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے اقتدار کی راہ میں رکاوٹ سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے پاکستانی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ کیونکہ امن فوج میں پاکستانی فوج ہی زیادہ تعداد میں موجود تھی، پاک فوج کی کئی چوکیوں پر فائرنگ کی گئی۔ پاکستانی فوجیوں نے بھی ہر بار فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا، لیکن حملے بڑھتے چلے گئے۔ اس موقع پر پاک فوج کو UN کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ صومالی فوجیوں کے اسلحے کے ذخیروں کا معائنہ کرے۔ یونائٹڈ نیشن فورسز کا یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اس اسلحے کا معائنہ کر سکتے تھے تاکہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے اور ملک میں انارکی نہ پھیلے۔ اس کے لیے وہاں کے باغی رہنما جنرل فرح عدید کو بھی اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ جنرل نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اس لیے 5 اور 6 جون 1993 کی رات بہت سے پاکستانی فوجی اسلحے کی انسپیکشن کے لیے چلے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنرل انہیں دھوکے سے گھیرنے کا پلان بنا چکا ہے۔ جب پاکستانی فوجی اسلحے کی سٹوریج کا معائنہ کرنے کے بعد اپنی چھاؤنی کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں چھپے ہوئے صومالی باغیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے راکٹ لانچرز اور گرنیڈ سے حملہ کیا۔ پاکستانی فوجی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کھلی جگہوں پر تھے اور دشمن عمارتوں میں چھپ کر فائرنگ کر رہا تھا، اس لیے فوری طور پر پاک فوج کا شدید جانی نقصان ہوا۔ تقریباً 24 جوان شہید اور 50 سے زائد زخمی ہوئے، لیکن پھر پاکستانی فوجیوں نے سنبھل کر شدید جوابی فائرنگ کی اور اس میں 23 صومالی باغی بھی ڈھیر ہو گئے۔ اس دوران امریکی گن شپ ہیلی کاپٹرز اور اٹالین فوج کے کچھ دستے بھی لڑائی میں شریک ہو گئے۔ آخر میں صومالی باغی بھاگ نکلے اور پاکستانی فوجی بھی اپنے کمپاؤنڈ میں واپس لوٹ گئے۔ لیکن اس واقعے کے بعد پاکستانی فوج محتاط ہو گئی۔ پاکستانی کمانڈوز کو یقین ہو گیا کہ جنرل انہیں دوبارہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے موغادیشو میں پاکستانی کمپاؤنڈ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی اور پوری فوج کو کسی بھی حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ 2 روز بعد 8 جون کو
जनरल अदीद के जंगजुओं ने मोगादिशो में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला कर दिया, लेकिन इस बार पाक फौज के जवान पूरी तरह तैयार थे। उनकी शदीद जवाबी फायरिंग से 2 सोमाली बागी मारे गए और बाकी सर पैर पर रखकर भाग निकले। इस लड़ाई में पाक फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंद रोज बाद जनरल ने एक और चाल चली। 14 जून को सोमाली जंगजू सिविलियन मुजाहिरीन के भेस में पाकिस्तानी फोर्सेस के कंपाउंड पर हमला आवर हुए, लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने भेड़ की खाल में छुपे इन भेड़ियों को पहचान लिया और फायरिंग करके 20 शरपसंदों को मौके पर ही ढेर कर दिया। इस बार भी दुश्मन भाग निकले और दोबारा पाकिस्तानी फौज पर किसी बड़े हमले की जुर्रत नहीं की। जनरल अदीद और यूएन फोर्सेस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, खास तौर पर पाकिस्तानी फौजियों पर हमलों का सख्त रद्द अमल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोगादिशो में मजीद फौज भेज दी और जनरल को वार्निंग दी कि पाकिस्तानी अमन फौजियों के कत्ल में मुलव्वस तमाम लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। जनरल खौफजदा होकर अंडरग्राउंड चला गया, लेकिन इसकी तलाश जारी रही। 12 जुलाई को अमरीकी फोर्सेस ने जनरल फरल अदीद के घर पर छापा मारा। इस मौके पर खौफनाक लड़ाई हुई जिसमें उनके कबीले के कई अहम सरदार मारे गए। अमरीकी गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने घर पर मिसाइल बरसाए और शदीद फायरिंग भी की। इस हमले में जनरल अदीद बच निकला, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अमरीकियों ने इसकी तलाश तेज कर दी। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने अमरीकी टास्क फोर्स रेंजर्स को भी जनरल की गिरफ्तारी का मिशन सौंप कर सोमालिया भेज दिया। जनरल के हामियों ने अमरीका और यूएन फोर्सेस पर हमले तेज कर दिए। जनरल अदीद और इसके कमांडोज की खोज में अमरीकी फोर्सेस के हाथों कई सोमाली शहरियों की हलाकतें भी हुई। ये सब कुछ मकामी सतह पर गुस्से का बायस बन रहा था। हालांकि शुरू में जब अमरीकी और यूएन फोर्सेस सोमालिया आई थीं, तो अवाम ने इनका शानदार इस्तकबाल किया था, लेकिन अब अमरीकी फौजियों की कार्रवाइयों की वजह से अवाम सिर्फ अमेरिका के ही नहीं बल्कि यूएन फोर्सेस के भी खिलाफ हो गई थी। हालांकि ये फोर्सेस खास तौर पर पाकिस्तानी फौजी तो सोमाली अवाम की मदद के लिए आए थे, लेकिन सोमाली जंगजू इन्हें भी अपना दुश्मन समझकर इनको निशाना बनाते जा रहे थे। इस जंग का क्लाइमैक्स 3 अक्टूबर को हुआ। 3 अक्टूबर को मोगादिशो में अमरीकी फौज को जनरल फरल अदीद के कुछ साथियों के ठिकाने का इल्म हो गया, इसलिए फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये कार्रवाई सोमाली दारुल हुकूमत मोगादिशो की बकारा मार्केट में वाक़े ओलंपिक होटल में की जाना थी। इस ऑपरेशन के लिए एक एलीट टास्क फोर्स को भेजा गया। टास्क फोर्स के पास खुफिया मालूमात थी कि जनरल अदीद के कमांडर्स वहां एक अहम मुलाकात के लिए मौजूद होंगे। अमरीकी फोर्सेस की इस जमीनी और फिजाई कार्रवाई में सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और ट्रकों के साथ साथ फिजा में हेलीकॉप्टर्स का पहरा था। तमाम फौजी दस्ते ओलंपिक होटल की इमारत की तरफ गामजन थे। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों समेत 19 तैयारे, 12 फौजी गाड़ियां और 160 अमरीकी फौजी शामिल थे। इब्तिदा में हुकाम का ख्याल था कि ये ऑपरेशन 90 मिनट में खत्म हो जाएगा, ताहम अंदाजों के बिल्कुल बरक्स अमरीकी फोर्सेस की वापसी अगले 17 घंटों तक मुमकिन ही ना हो सकी। अमरीकी फौजी नहीं जानते थे कि दुश्मन इस ऑपरेशन के लिए पहले से तैयार है। ये भी हो सकता है कि सोमालियों ने ही अमेरिका को गलत इत्तलात देकर इस ऑपरेशन के लिए मजबूर किया था ताकि वो हमला करें और सोमालियों के घेरे में आ जाएं। इस वाक़े के यानी शाहिद बताते हैं कि जब अमरीकी फौजियों की गाड़ियां मोगादिशो की गलियों से गुजर रही थीं, तो सोमाली जंगजू मुख्तलिफ इमारतों में छुप कर उन्हें देख रहे थे। जिस सड़क से अमरीकी गाड़ी गुजर जाती थी, सोमाली मिलिशियाज के दस्ते इन सड़कों पर रुकावट खड़ी करके उन्हें ब्लॉक कर देते थे। यानी कि किसी ने अमरीकी फौजियों को अपने टारगेट की तरफ जाने से हरगिज नहीं रोका, लेकिन खामोशी से वापसी का रास्ता बंद करते चले गए। दिन 3:30 बजे अमरीकी फौज इस होटल के करीब पहुंच चुकी थी और हमले के लिए तैयार थी। अमरीकी फौजियों ने अपनी गाड़ियों से उतरकर इमारत के गिर्द पोजीशन संभाल ली और इसकी निचली मंजिलों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आए, जिन्होंने फौजियों को होटल की छत पर उतार दिया। एन उस वक्त दुश्मन ने भी हर तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। अमरीकी फौज और बागियों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया।
50 मिनट तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अपने फौजियों को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर इमारत के करीब आया तो सोमाली बागियों ने इसे रॉकेट लॉन्चर फायर करके मार गिराया। लगभग 20 मिनट बाद दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया गया। इन दो हेलीकॉप्टर्स की तबाही से सूरत हाल अमेरिकी फौजियों के खिलाफ हो गई। अब ये फौजी फिजाई कवर से बिल्कुल महरूम हो चुके थे और पूरी तरह से दुश्मन के घेरे में आ चुके थे। अब अमेरिकी फौजी दस्ते इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के जमीनी हमले को बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोमाली जंगजुओं ने भी अपना घेरा इस कदर तंग कर दिया कि हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। हर तरफ शदीद फायरिंग हो रही थी, रॉकेट और हैंड ग्रेनेड भी दागे जा रहे थे। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। अगले कई घंटों तक मुसलसल लड़ाई जारी रही। इस दौरान अमेरिकी डेल्टा कमांडोज जो कि हेलीकॉप्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इनमें से भी कुछ मारे गए और बाकी पीछे हट गए। डेल्टा कमांडोज की हलाकत के बाद दूसरे हेलीकॉप्टर के मलबे के करीब सिर्फ एक अमेरिकी पायलट माइकल जिंदा बचे थे। मार गिराए गए दूसरे हेलीकॉप्टर तक कोई अमेरिकी दस्ता नहीं पहुंच पा रहा था, जहां माइकल ड्यूरेंट टूटी हुई टांग और कमर पर जख्मों के साथ गिरे पड़े थे। वो कहते हैं कि मुझे यकीन हो चला था कि इस गोलाबारी में मैं अपनी जान गंवा बैठूंगा। वो कहते हैं कि वहां के जंगजुओं ने मुझे अचानक देख लिया और गिरफ्तार करके तशद्दुद करने लगे, लेकिन वहां एक जंगजू को एहसास हुआ कि बतौर कैदी मेरी अहमियत ज्यादा हो सकती है, चनाचा उसने हवाई फायरिंग करके बाकियों को रोका और मुझे कैद कर लिया। अमेरिकी फौजी सोमाली मिलिशियाज के नरगे में बुरी तरह फंस चुके थे। अमेरिकी हाई कमान बुरी तरह परेशान थी। इसके 100 के करीब फौजियों की जानें जा सकती थीं या वो दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो सकते थे। ये दोनों मामलात अमेरिकियों को किसी तरह हरगिज काबिल कबूल नहीं थे। इसलिए अमेरिकियों ने फौरी तौर पर मोगादिशो में पाकिस्तानी हेडक्वार्टर से राब्ता किया और पाक फौज को अपनी मदद के लिए पहुंचने का कहा। यूएन फोर्सेस ने अमेरिकी फौज के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पर तरतीब दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी, मलेशियन और अमेरिकी फौज के कुछ दस्तों को शामिल किया गया था, लेकिन इस रेस्क्यू फोर्स में सबसे बड़ा दस्ता पाकिस्तानी फौजियों पर मुश्तमिल था। ये फौज रात के वक्त मुतासरा इलाके की जानिब रवाना हुई ताकि घेरे में आई हुई अमेरिकी फौज को रेस्क्यू कर सके। इस सारे वक्त में अमेरिकी फौज मोगादिशो में बुरी तरह फंस चुकी थी और अपने जोर पर वहां से निकल नहीं सकती थी। चारों तरफ से इस पर शदीद हमले हो रहे थे। अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स जो दिन के वक्त अपनी फौज की मदद के लिए वहां मौजूद थे, उन्हें रात को वापस बुला लिया गया था। अगर ये हेलीकॉप्टर्स रात को भी फायरिंग करते तो इस बात का खतरा था कि ये गलती से अपने फौजियों को निशाना न बना बैठे। इतने घंटे गुजरने के बावजूद वहां दोनों ग्रोहों के बीच फायरिंग जारी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की दरखास्त पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी दस्तों ने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत हिस्सा लिया था, जबकि अमेरिकी फौजियों की वापसी के लिए 3 खाली बख्तरबंद गाड़ियां भी ले जाई गई थी। रेस्क्यू टीम रात 11 बजे रवाना हुई, जिसमें सबसे आगे पाकिस्तानी दस्ते और उनके बाद अमेरिकी और मलेशियन दस्ते लड़ाई के मकाम की तरफ गामजन थे। पाकिस्तानी फोर्सेस को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि क्विक रिस्पांस फोर्स को बंदरगाह से ओलंपिक होटल तक ले जाना है, इलाके का मुहासरा करना है, फिर फायर सपोर्ट देनी है और जब अमेरिकी रेंजर्स को रेस्क्यू कर लिया जाएगा तो इनका महफूज इनखला यकीनी बनाना है। यानी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तानी फोर्सेस को सबसे पहले इस इलाके में दाखिल होना था और सबसे आखिर में बाहर आना था। एक टैंक ऑपरेटर सालदार इफ्तिखार जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऑपरेशन को याद करते हुए बताया कि पाकिस्तानी टैंक इस रेस्क्यू की क़यादत कर रहे थे, मगर इन टैंकों पर नाइट विजन यानी अंधेरे में देखने वाले आलात नस्ब नहीं थे। ये टैंक अंधेरी और तंग गलियों से गुजरते जा रहे थे। कदम कदम पर दुश्मनों ने रुकावटों का जाल बिछा रखा था। हर घर से गोलियां बरस रही थीं, लेकिन पाकिस्तानी टैंक बिला खौफ व खतर हर रुकावट को कुचलते हुए आगे ही बढ़ते चले जा रहे थे। अंधेरे और दुश्मन की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद पाकिस्तानी रेस्क्यू फोर्सेस दोनों हेलीकॉप्टर्स के मलबे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। फिर प्लान के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान आहिस्ता आहिस्ता फंसे हुए अमेरिकी फौजियों को बाजियाब किया जाने लगा।
जबकि क्विक रिस्पांस टीम का एक ग्रुप बागियों पर जवाबी फायरिंग कर रहा था। रात 3 बजे के करीब टैंकों का ईंधन खत्म होने लगा, क्योंकि ये 3 घंटों से चल रहे थे और इन्हें बारी बारी रीफ्यूलिंग यानी ईंधन भरने के लिए भेजा गया। इस दौरान दुश्मन की फोर्सेस ने पाकिस्तानी और मलेशियन फोर्सेस पर रॉकेट दागे और शदीद फायरिंग की। मलेशियन दस्ते में शामिल 2 बख्तरबंद गाड़ियां रॉकेट हमलों का निशाना बन गईं, लेकिन इसके बावजूद पाक फौज ने ये ऑपरेशन इस महारत से अंजाम दिया कि सिर्फ एक पाकिस्तानी और एक मलेशियन फौजी शहीद हुआ। हालांकि जून में जब दुश्मन ने धोखे से हमला किया था तो इस वक्त पाकिस्तान के 24 जवान शहीद हुए थे, लेकिन वो हमला धोखे से किया गया था। इस बार रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज होशियार थी और दुश्मन से निपटने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार थी, इसलिए दुश्मन का जानी नुकसान ज्यादा हो रहा था और पाक फौज का नुकसान न होने के बराबर था। मार्क बाउडन की किताब ब्लैक हॉक डाउन के मुताबिक इस बड़ी रेस्क्यू फोर्स में अमेरिकी फौजियों समेत अमन फौज के सैकड़ों अहलकारों के साथ साथ 4 पाकिस्तानी टैंकों ने हिस्सा लिया था। पाक फौज की जबरदस्त कारकर्दगी की अमेरिकी कमांडर्स भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। सोमालिया में अमेरिकन फौज के आला तरीन कमांडर जनरल थॉमस मिंटगोमरी ने एक इंटरव्यू में पाक फौज की जबरदस्त तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि रेस्क्यू टीम में पाकिस्तानी टैंकों में नाइट विजन की सलाहियत नहीं थी, मगर ये सफ़े अव्वल में थे। तंग रास्तों से गुजरते हुए उनकी रफ्तार कम थी, इसके बावजूद ऑपरेशन कामयाब रहा। मार्क बाउडन की किताब ब्लैक हॉक डाउन के मुताबिक मोगादिशु का फुटबॉल स्टेडियम, जहां पाकिस्तानी हेडक्वार्टर कायम था, इसका ग्राउंड रेस्क्यू किए गए जख्मी अमेरिकी फौजियों से भर चुका था और उनके जिस्मों पर संगीन चोटें थीं, जिसकी वजह से कई जख्मियों की यूनिफॉर्म्स फाड़कर जख्मों का इलाज किया जा रहा था। पाक फौज की 7वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी और 100 के करीब अमेरिकी फौजियों का बचाने का सेहरा भी उसके सर जाता है। लेकिन अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने वक्ती तौर पर तो पाक फौज के किरदार की बहुत तारीफें की, लेकिन ये बात वो अपनी पब्लिक को नहीं बता सके। 2001 में अमेरिका में ब्लैक हॉक डाउन फिल्म बनाई गई तो इसमें पाकिस्तानी फौजियों का पूरा रेस्क्यू मिशन, उनकी जानबाजी और बहादुरी को बिल्कुल नहीं दिखाया गया। पूरी फिल्म में पाकिस्तानी फौजियों की चंद एक सीन्स शामिल थे, बाकी फिल्म में अमेरिकी फौजियों की बहादुरी को ही मौजू बनाया गया था। यानी जानबूझकर ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि अमेरिकी फौज को रेस्क्यू करने की कार्रवाई में पाक फौज का ज्यादा हाथ नहीं था, लेकिन हकीकत ये थी कि अगर पाकिस्तानी फौज वक्त पर ना पहुंचती और बहादुरी से मुकाबला ना करती तो कम से कम 100 अमेरिकी फौजी इस रोज जरूर मारे जाते। इन सब को पाक फौज ने रेस्क्यू किया था। अमेरिका इस हकीकत को माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान का ये एहसान रहेगा कि मुश्किल तरीन हालात में पाक फौज ने उनकी मदद की थी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चीन और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर में से कौन ज्यादा ताकतवर है तो इस दूसरे लिंक पर क्लिक कीजिए, और अगर आप पाकिस्तान और भारत की ताकत का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो ये लिंक स्क्रीन पर मौजूद है।